Good evening to everybody. In the last lecture, we discussed on different types of mode of formations, and we finished this topic. Now, in today's lecture, we are going to discuss on second topic from the fifth unit, and the title is given in front of you, that knowledge organization, right? Classification, theories, canons, principles, simple knowledge organization system, that is called the SKOS, taxonomies, folksonomy, trends in classifications. Okay, so all these are the points which are the most important for our examinations, because some questions are being or will be asked on this topic. Okay, what is meaning by the taxonomy, folksonomy? Okay, so it is necessary to understand the meaning of this concept. So let's see one by one. At the beginning, in introductory para, we will see what kind of the explanation is given about this topic. The term classification refer to systematic arrangement of library materials by subject matters, so that subject related materials may be brought together. Okay, so in this way, the meaning of classification tried to given in first two lines. The term classification, okay, refer systematic arrangement of library material, right? So that is called the classification. So classification is the major concept from library information science, so that is why it is further known as library classification, and that is why it is called the soul of library, because without classification no library can be exist, right? Otherwise, I have told already that library is a store of books and store of different types of materials. So what is the difference between two them? Okay, if we are take example of this and try to understand this concept with given example, or by taking example, then classification. Okay, here store and library, both are store of materials. Both are stores. Store are including materials, library are documents. Okay,
in which non-book document and documents are included there. But what is the difference between them? In store, no classification is there. All the things, all the materials or the substances are scattered everywhere without any classification. So that is why it is called the store. Okay. Our tendency is whatever come in our hand, we throw in the store. We keep in the store without any classification. So there is no classification. So when we speak about the store, whether it is in our home, whether it is in our college, school, university, or whether it is in company, whether it is in any kinds of organization or institutions, so whatever we think, we throw in the store without any classification. So that is why it is called the store. Okay. And library documents classification is there. So this is the difference between store and library. Okay. Otherwise, if we don't classify the books according to their subject, according to their call number, according to their discipline, then what will happen? The confusion will be created there. No user can't find the books immediately whatever they want, and in this way the time, money and energy of the user will be wasted there, right? So that is why the classification have a lot of importance in the field of library and library information science. So we can call the classification is library and library is the classification. They are integral part of each others, so we can't separate from to each others. Okay. So when we speak about the body, organs and the parts of body are integral part. Okay. All these are considered as a body of human being. So it is called the integral part, right? So at the same way, classification is called the library and library called is a classification. So in this way, I emphasize here one thing, that classification is the soul of library. Okay. So whether it is small library, whether it is medium library, or whether it is big library, there must be classification. Without classification, no library can function, no library can be function. तो इस तरह से बिना क्लासिफिकेशन किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की, किसी भी साइज की लाइब्रेरी फंक्शन नहीं कर सकती, एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। किसी भी साइज की, यानी कि यदि स्मॉल हो, मीडियम हो या लार्ज हो, किसी भी प्रकार की, यानी कि क्या, एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, नेशनल हो, पब्लिक हो, स्पेशल लाइब्रेरी हो, तो उसमें क्लासिफिकेशन मस्ट होता है. विदाउट क्लासिफिकेशन वी कांट ऑपरेट द library. There are lot of problem will be create in front of not only the users but in front of also librarian और library staffs. तो जहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं होता है
वहाँ केवल यूजर के सामने दिक्कत नहीं होती या उन्हें प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि जो लाइब्रेरी स्टाफ होता है, लाइब्रेरियन होता है, उसके सामने भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बिकॉज it is very difficult to find out the book for the both library staff as well as library users. So for the both, library classification is very helpful for searching the books, for searching the document in the library. Suppose when we make the definition of library, so simple definition can be given by us that library is nothing but the storehouse of the books, right? But if we are throw all kinds of books, materials, documents in the library without any classification, and it become the huge pile in the library, and if some users are come there to locate the document, to find the information, to get the book, then what will happen there? He will come in the library, then first time he will see the atmosphere of the library, nature of the library, and after watching the huge file of documents, he become very confused. He don't get any kinds of books to or from the pile, and that's why he will be left the library after some times, because he become very bored there, he confused there, and the time, money and energy of the users will be wasted there. तो इस तरह से घटनाक्रम हमने यहाँ पर आपको बताया कि किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है जब लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन नहीं होता है, और दो लाइब्रेरी में यदि क्लासिफिकेशन के बारे में जब हम कंपेयर करते हैं, एक लाइब्रेरी जहाँ पर प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है और दूसरी लाइब्रेरी जहाँ पर प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, और दोनों कमर्शियल लाइब्रेरी है, पेड यूजर्स है, तो किस प्रकार की और कौन सी लाइब्रेरी में ज़्यादा यूजर्स आपको ज़्यादा दिखाई देंगे? तो जहाँ पर प्रॉपर क्लासिफिकेशन है वहाँ पर यूजर्स आपको दिखाई देंगे कि क्लासिफिकेशन यूजर को भी पसंद आता है। ओपन एक्सेस लाइब्रेरी हो तो एंटर करके हर जगह पे घूमता है और जो चाहे बुक्स वह पढ़ता है। ओके, तो इस तरह से स्टोर और लाइब्रेरी में यही फ़र्क है, स्टोर में क्लासिफिकेशन नहीं होता है और लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन होता है, इसीलिए स्टोर को क्लासिफिकेशन के साथ लाइब्रेरी कहा जाता है। ओके, यदि स्टोर में हम क्लासिफिकेशन जोड़ दें तो उसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। ओके, तो ये फ़र्क हमें लाइब्रेरी और क्लासिफिकेशन में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ओके, so though the use of mixed notational consisting of combination capital letters and numerals, the Library of Congress classification proceed from जनरल टू स्पेसिफिक। तो लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या हुआ है, कैपिटल लेटर्स और न्यूमरल्स दोनों प्रकार का जो नोटेशन है वो मिक्स किया गया है, मिक्स नोटेशन यूज़ किया गया है वहाँ पे, और उससे हमें क्या पता चलता है, फिर जनरल टू स्पेसिफिक की ओर हम जाते हैं। ओके, जब हम जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं तब हमें डॉक्यूमेंट वहाँ पर दिखाई देता है।
फिर इसके बाद जब हम जनरल स्पेसिफिक की ओर जाते हैं तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि किस तरह से डॉक्यूमेंट हमें वहाँ पर प्राप्त करना है. सो as to provide for all the minutes grouping of subject subject, तो इस तरह से हम सब्जेक्ट के ग्रुप करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन. क्लासिफिकेशन इज द बेड रॉक ऑफ सिस्टमैटिक लाइब्रेरी. बेड रॉक मीन्स इन बेस, यानी कि फाउंडेशन, यानी कि सोल. कोई भी वर्ड हम यहाँ पर दे सकते हैं. इट इज द हाइपन दैट जॉइंस and the buckles that fasten the readers and his document. तो क्लासिफिकेशन को एक हाइपन कहते हैं. जैसे कि हाइपन का क्या काम होता है, दो शब्दों को जोड़ता है, दो वर्ड को जोड़ता है, कनेक्ट करता है. उसी तरह से क्लासिफिकेशन भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन और यूजर्स को जोड़ने का काम करता है, रीडर को जोड़ने का काम करता है. ओके, इसलिए उसको हाइपन कहा गया है. जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं यूजर्स डॉक्यूमेंट्स. ओके, क्लासिफिकेशन काम करता है. ओके, और फिर इससे क्या बनती है, फिर लाइब्रेरी बनती है. तो इस तरह से हम एक उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं. यूजर्स दैट इज कॉल्ड द हाइपन. हाइपन यानी कि कनेक्ट करना, यूजर और डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट करता है क्लासिफिकेशन. ओके, और फिर उससे हम लाइब्रेरी की कंसेप्ट को देखते हैं. ओके, सिस्टमैटिक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के थ्रू एग्जिस्ट होती है. सो द वर्ड क्लासिफिकेशन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्लासिस. तो क्लासिफिकेशन जो वर्ड है कहाँ से आया है, क्लासिफिकेशन क्लासिस ये लैटिन वर्ड है. ओके, और इसका मीनिंग क्या होता है, इन द एंशिएंट रोम द टर्म क्लासिस वाज यूज्ड टू रेफर द ग्रुप्स ऑफ पर्सन possessing certain qualities in common as well as belonging to the same class. तो इसको ग्रुप कहते हैं, क्लास को, ग्रुप ऑफ पर्सन विच बिलोंग टू द कॉमन फीचर्स, कॉमन क्वालिटीज. दैट इज व्हाई it is called the classes. Okay, so classes is nothing but the group of people, strata of peoples belong to the society on the basis of similar qualities, similar features, similar traits. Okay, they come together, they live together, and that is why it is called the classes. So in this way classes is the group of people it is called. Okay, means it indicate the classify the society in different points, different groups. तो इस तरह से क्लासिस ये शब्द है. क्लास शब्द आपने सुना होगा. क्लास को क्लास क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो डिफरेंस क्लासेस होते हैं, क्लास. ओके, और क्लास यानी कि ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप. जैसे कि फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास, थर्ड स्टैंडर्ड का क्लास, फोर्थ स्टैंडर्ड का क्लास होता है. तो भले ही सभी में बच्चे हैं, स्टूडेंट है, लेकिन वहाँ पर एक डिफरेंशिएट आपको दिखाई देगा कि हर एक क्लास डिफरेंट है, क्योंकि उसमें एक साल का फ़र्क है.
फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर सेकंड स्टैंडर्ड में 1 साल का फ़र्क है। ओके, उनके नॉलेज में फ़र्क है। तो जो सिमिलर क्लास में पढ़ते हैं उनका नॉलेज, एज वगैरह वगैरह, ये सब बातें सिमिलर होती है। तो ठीक उसी तरह से जैसे कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ऐसे क्लास होते हैं, क्लासेस होते हैं, ठीक उसी तरह समाज में भी ऐसे कम्युनिटीज़ होती है, ग्रुप्स होते हैं कि जिनकी फीचर्स या क्वालिटीज़ सिमिलर होती है, समान होती है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन स्टार्ट फ्रॉम आवर होम and it will be continue in society also. Okay, it will start from our birth and it will end our death. Okay, तो क्लासिफिकेशन हमारे जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है और मरने के बाद भी क्लासिफिकेशन रहता है यहाँ पर। एंड वी कैन कॉल इट दैट क्लासिफिकेशन इज द बिगिनिंग ड्राइव ऑफ यूनिवर्स और नेचर। तो क्लासिफिकेशन नेचर का ड्राइव है, जैसे कि नेचर हर एक चीज़ को क्लासिफाई कर देता है। ओके, और बहुत सारे क्लासिफिकेशन हम नेचर में देखते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, देन एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स। ओके, और कई तरह के क्लासिफिकेशन हमें नेचर में मिलते हैं देखने को। और ठीक उसी तरह भी सोसाइटी में भी कई तरह के क्लासिफिकेशन हमें मिलते हैं देखने को। तो क्लासिफिकेशन वी कैन फाइंड इन नेचुरल थिंग एज वेल एज इन आर्टिफिशियल थिंग आल्सो। तो दोनों लेवल पे हमें क्लासिफिकेशन दिखाई देता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं दोनों लेवल, यानी कि क्या, क्लासिफिकेशन तो यहाँ पर नेचुरल आपको क्लासिफिकेशन दिखाई देगा नेचर में, और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ओके, तो दोनों लेवल पे आपको क्लासिफिकेशन दिखाई देता है। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन आपको नेचर में दिखाई देगा। ओके, कि जैसे कि नेचर में अलग अलग प्रकार के क्लास आपको दिखाई देंगे। ओके, और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ये सोसाइटी में आपको दिखाई देगा, ये ह्यूमन के द्वारा किया जाता है। तो उसमें भी आपको अलग अलग प्रकार के क्लास और क्लासेस दिखाई देंगे। ओके, तो नेचर में जैसे कि नेचर क्या करता है, फिर जोग्राफिकल आप देखोगे तो उसमें भी आपको क्लासिफिकेशन दिखाई देगा। कुछ चीज़ें, घटनाएं नेचर में होती तो उसमें भी क्लासिफिकेशन दिखाई देगा, जैसे कि रेनी सीजन, समर सीजन और विंटर सीजन। ऑल दीज आर नथिंग बट द क्लासिफिकेशन। और ये मेन सीजन हमने आपको बताए, और कई उप सीजन भी है उनके, जैसे वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी ऋतु जो है, सीजन्स जो है, ऑल दीज आर नथिंग बट द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर। ओके, तो निसर्ग और नेचर हमें क्या करता है, क्लासिफिकेशन सिखाता है। क्लासिफिकेशन को किस तरह से हम फेमिलियर होते हैं, ये हमें नेचर सिखाता है। तो हम जन्म से ही
क्लासिफिकेशन सीखते आते हैं, लेकिन केवल हमें पता नहीं होता उस टाइम उस समय कि इसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है। लेकिन जब आप हमारा सब्जेक्ट में ये पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, तो हम उसका कॉन्टेक्स्ट केवल हमारे सब्जेक्ट से लगाते हैं या सब्जेक्ट के बारे में उसका विचार करते हैं। लेकिन क्लासिफिकेशन ये बहुत बड़ी वाइड कंसेप्ट है। इट इज़ रिलेटेड टू द नेचर as well as it is related to the human being. It is related to our also our subject, और हमारे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है और यूनिवर्स से भी रिलेटेड है। ओके, यूनिवर्स का जब हम विचार करते हैं तो यूनिवर्स में दोनों तरह की चीज़ें होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ओके, और दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है। आर्टिफिशियल, ओके। तो दोनों तरह की का जो क्लासिफिकेशन है, नेचुरल क्लासिफिकेशन और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आपको यूनिवर्स में दिखाई देता है। ओके, सो in this way we try to understand the meaning and emphasis of classification, and in this way we try to give the meaning regarding natural context and artificial context. Okay, there is a natural classification is going on in the natures, and there is artificial classification is going on in the society by the human being. Okay, and if we take example of universe, then both kinds of the classification, natural classification and artificial classification, can be find together. तो एक साथ हम दोनों क्लासिफिकेशन यूनिवर्स में देखते हैं। यूनिवर्स यानी कि पूरा यूनिवर्स वर्ड, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी रहते हैं नेचर के साथ, और नेचर में ह्यूमन बीइंग रहता है। तो ह्यूमन बीइंग अलग अपना आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन तैयार करता है या कुछ चीज़ें क्लासिफाई करने का प्रयास करता है। नेचर अपने आप खुद ब खुद ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें क्लासिफाई कर देता है। इतना फ़र्क है। ये जो क्लासिफिकेशन है नेचर का, एक ऑटोमेटिक होता है। ओके, और आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन सोसाइटी में, ये मैनुअल तरीके से होता है। मैनुअल जब हम करते हैं इंटेंशनली, ओके, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होता। इसको आर्टिफिशियल और मैनुअल कहते हैं, इंटेंशनली कहते हैं। लेकिन नेचर में जो क्लासिफिकेशन पहले हुआ है और हो रहा है, तो एक क्लासिफिकेशन ऑटोमेटिक होता है, अपने आप होता है। तो इस तरह से दोनों का कॉम्बिनेशन यूनिवर्स में होता है। यदि हम इस तरह से इसका बैकग्राउंड स्टडी करते हैं तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि क्लासिफिकेशन कितनी ब्रॉड कंसेप्ट है, और जिसका हम स्टडी कर रहे हैं। वी आर वेरी लकी टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बिकॉज इट इज़ द बेस ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का बेस है। बिना क्लासिफिकेशन कोई भी काम नहीं कर सकता। जैसे कि यूनिवर्स की निर्मित कैसे हुई, जब आप पढ़ते हो तो उसमें भी आपको क्लासिफिकेशन दिखाई देगा। ओके, तो गैलेक्सी जो है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जोग्राफिकली यदि हम देखते हैं तो गांव, शहर, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री,
कॉन्टिनेंट और फिर अर्थ। तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। ओके, अकॉर्डिंग टू द एरिया, जोग्राफिकल एरिया, राइट। और फिर आगे जाके अर्थ, सूर्यमंडल और सौरमंडल, आकाशगंगा, दीर्घिका, राइट, और ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्लासिफिकेशन हो गया, ये भी एरिया वाइज क्लासिफिकेशन है। तो इस तरह से ये क्या इंडिकेट करता है हमें, ये पूरा क्लासिफिकेशन बेस है और इसके आधार पर ही यूनिवर्स का विस्तार हुआ है और आगे भी हो रहा है। तो बिना क्लासिफिकेशन के हम जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, क्योंकि इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे कि हम हमारे घर से क्लासिफिकेशन शुरू होता है, जब हम घर में रहते हैं तो पूरी तरह से सब चीज़ें क्लासिफाई होती है। कभी भी सभी चीज़ें घर में ऐसे स्कैटर आपको नहीं दिखाई देगी। जैसे कि हमारी जहाँ हम रहते हैं वहाँ की सिस्टम 1 BHK, 1 RK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK ऐसी है। तो उसमें अलग अलग रूम होती है, बेडरूम अलग होता है, बाथरूम अलग होता है, किचन अलग होता है, हॉल अलग होता है, ओके, गैलरी अलग होता है। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन हो गया। और फिर उसके हिसाब से और चीज़ें हम घर में करते हैं, जैसे कि सभी जो पॉट्स है, किचन के जो पॉट्स है किचन में लगाते हैं, बेड्स के जो इंस्ट्रूमेंट है मीन्स है वो बेड रूम में लगाते हैं, हॉल के जो मीन्स और इंस्ट्रूमेंट है और फर्नीचर है वह हॉल में लगाते हैं, राइट। ऐसा कभी नहीं होता कि हम टीवी किचन में लगाते हैं और फ्रिज बेडरूम में रखते हैं, ओके, ऐसा रेयरली होता है। तो इसकी बातें जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग ग्रुप और क्लासिफिकेशन के साथ हम करते हैं, लेकिन हम कभी इस पर विचार नहीं करते कि हम ये क्लासिफिकेशन करके कर रहे हैं या क्लासिफिकेशन के साथ कर रहे हैं। ओके, तो कहने का मतलब क्लासिफिकेशन स्टार्ट फ्रॉम आवर होम, इवन it is going on to society. In the society also classification is there, और सोसाइटी में क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि अलग अलग सोसाइटी होती है, अलग अलग नगर होते हैं, अलग अलग वस्ती होती है। तो ऑल दीज आर नथिंग बट द क्लासिफिकेशन, और क्लासेस बिलोंग टू द सोसाइटी। पूरी तरह से क्लासिफिकेशन ऑक्यूपाई है। जहाँ भी देखोगे हमारा घर, सोसाइटी, नेचर, ओके, हमारी ह्यूमन बॉडी, सब क्लासिफाइड है। तो क्लासिफिकेशन का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस हमने यहाँ पर आपको बताया। यदि आप पढ़ते केवल हमारे सब्जेक्ट के बारे में इसका विचार करते, लेकिन क्लासिफिकेशन कितनी बड़ी कंसेप्ट है जो हमारे जीवन का एक अविभाज्य भाग है, लेकिन कभी भी हम इसका विचार नहीं करते। लेकिन आज आपने क्लासिफिकेशन के बारे में जाना कि क्लासिफिकेशन हमारे जीवन का एक अंग है, अविभाज्य भाग है। वी कांट सेपरेट फ्रॉम टू ईच अदर, सो इट इज़ वेरी लर्न अबाउट दैट। It is found in the nature, it is found in our home, it is found in our society, it is found everywhere, right? तो ये सभी जगह पे हमको मिलता है। जैसे कि आप शॉप में जाओगे तो वहाँ भी क्लासिफिकेशन दिखाई देता है, आप किसी भी दुकान में जाओगे वहाँ पर क्लासिफिकेशन दिखाई देता है, आप मॉल में जाओगे वहाँ तो क्लासिफिकेशन होता ही होता है। तो क्लासिफिकेशन मस्ट एवरीवेयर, ओके, और इट विल बी एवरीवेयर। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन को आपको समझना है। नाउ डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन।
So after understanding the broad meaning of classification and great importance of classification, now we are trying to understand the definition of classification. So it is very simple to make the definition of classification after understanding the whole explanation on the base of our previous knowledge, on the base of our own interpretation. So it is very easy to give the definition in our own language. We can make also on our definition by understanding the clarification and explanation of classification. So let's see the definition of classification. Okay, classification is the process of sorting entities of universe into sub aggregate based on likeness and unlikeness. Okay, so classification, it is a kind of process which is going on the base of likeness and अनलाइकनेस. तो डिफरेंस और सेमनेस के बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है और इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है और इसमें अलग अलग एंटिटीज जो होता है, एलिमेंट सेगमेंट सेपरेट किए जाते हैं, सॉर्ट किए जाते हैं. इट इज़ ऑल्सो प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ एंटिटीज ऑफ यूनिवर्स. यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं उसका डिवीजन होता है, डिवाइडेशन होता है अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड फीचर. तो क्लासिफिकेशन एक प्रकार का डिवाइडेशन है अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड फीचर्स ऑफ एंटिटीज बिलोंग टू द यूनिवर्स. जैसे कि हमने यूनिवर्स का एग्जांपल दिया, नेचर का एग्जांपल दिया, सोसाइटी का एग्जांपल दिया, घर का एग्जांपल दिया. तो इन सभी जगहों पर इवन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग आपको क्लासिफिकेशन इसमें दिखाई देगा, राइट. तो एक क्लासिफिकेशन नेचर और फीचर के अकॉर्डिंग होता है. नेचर यानी कि क्या, मूल भाव, मूल स्वभाव, और फीचर यानी कि अलग अलग गुण. ओके, तो अलग अलग गुण के जो आदमी होते हैं, रजोगुण के आदमी अलग होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है. तमोगुण के अलग होते हैं, सत्व गुण के अलग होते हैं. तो अलग अलग बेस पे हम इसका डिवाइडेशन कर सकते हैं. सबसे क्रोध वाले अलग होते हैं, जो सबको प्यार करते हैं वो अलग होते हैं, जो मर्सी दिखाते हैं वो अलग होते हैं. तो गुण के बेस पे भी डिवाइडेशन हम कर सकते हैं व्यक्ति का. और फिजिकल फीचर ने, जैसे कि 6 फीट वाले लोग अलग ग्रुप होता है, 5 फीट वाले अलग ग्रुप. ओके, और सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप होते हैं, लोअर कैटेगरीज, मीडियम कैटेगरीज और हायर कैटेगरीज, जिसे हम ऑन द बेस ऑफ इनकम के बेस पर बोलते हैं. ओके, तो इस तरह से कभी कभी सोसाइटी में भी ऐसे ग्रुप हमको दिखाई देते हैं और एक ग्रुप ह्यूमन के द्वारा तैयार किए गए हैं, इसलिए हम इसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं. दोज क्लासिफिकेशन फाउंड इन द सोसाइटी and which is done by the human being, it is called the artificial classification. And those classification is it is found in the nature and which is done by the nature automatically, that is called the natural classification. And in this way both artificial classification and natural classification we can find at one place in the universe. Okay, so
classification is arranging the groups into in a defined sequence. So there are certain sequence, certain groups of classification. Library classification is a system of coding, sorting, organizing documents, library materials और any information. ओके तो इस तरह से लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एक प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि अलग अलग क्लासिफिकेशन हमने देखा, अलग अलग क्लासिफिकेशन हमको दिखाई देते हैं और अलग अलग जगह पे क्लासिफिकेशन का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। ओके यदि सोसाइटी में क्लासिफिकेशन है तो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है और जोग्राफिकली कॉन्टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का अलग है, जैसे कि गांव, तहसील वगैरह वगैरह। ओके और नेचर का क्लासिफिकेशन अलग है। तो हर जगह पे क्लासिफिकेशन का जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसका जो मूड होता है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो पूरी तरह से चेंज होता है। ओके तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने कौन सी क्या आती है फिर? सिस्टम ऑफ कोडिंग, असॉर्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग डॉक्यूमेंट, library materials and any information like book document and non-book documents, okay, according to their subject and allocating call numbers into information resources. तो जब हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने पहले डॉक्यूमेंट आता है। ओके तो क्लासिफिकेशन फ्लोचार्ट के माध्यम से हम समझते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। यहाँ पर क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन हमको दिखाई देता है, लेकिन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हम बात कर रहे हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन हमने नेचर में देखा, सोसाइटी में देखा, ओके होम में देखा। ओके तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। और अलग शब्द ले सकते हैं यहाँ पे, यूनिवर्स। ओके ब्रॉडली क्लासिफिकेशन इस लेवल पे होता है। और जब हम लाइब्रेरी की बात करते हैं एज ए इंस्टीट्यूशंस, ओके तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में क्या क्या होता है फिर? डॉक्यूमेंट शब्द आता है, तो उसमें बुक डॉक्यूमेंट आते हैं, ओके और नॉन बुक डॉक्यूमेंट आते हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स और ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं। ओके अलग अलग लेवल पे। लाइन और ऑनलाइन। और फिर उसमें बुक्स आते हैं, उसमें सब्जेक्ट आते हैं, अलग सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के कोड्स आते हैं, फिर उसके कॉल नंबर आते हैं। ओके क्लास नंबर आता है और उससे क्लास कॉल नंबर तैयार होता है। ओके तो ये सभी बातें हमें लाइब्रेरी में दिखाई देती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं लाइब्रेरी में। ओके तो ये सभी बातें करने के लिए एक क्लासिफिकेशन स्कीम होती है।
स्कीम ये पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन और क्लासिफायर के द्वारा डिज़ाइन की जाती है और उसके बेस पर हम वहाँ से गाइडलाइन प्राप्त करके क्लासिफिकेशन करने का प्रयास करते हैं। ठीक, जैसे कि डीडीसी है, यूडीसी है, सीसी है, ओके, एलसी है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, ओके। ऐसे बहुत सारे और कई सारे क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे और हर एक क्लासिफिकेशन अलग अलग उसका फीचर है, उसका नेचर है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या बुक डॉक्यूमेंट क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हर एक लेवल पे, हर एक कॉन्टेक्स्ट पर क्लासिफिकेशन का मीनिंग चेंज हो जाता है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्लासिफिकेशन हमको दिखाई देता है, ओके। जैसे कि नेचर में नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है, सोसाइटी में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है, तो इंस्टीट्यूट और ये जो सभी बातें हैं वहाँ पर आपको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिखाई देगा। और जब हम क्लासिफिकेशन स्कीम की बात करते हैं तो ये सभी क्लासिफिकेशन स्कीम कैसी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, ओके। और इसके द्वारा हम लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन करने का प्रयास करते हैं। तो क्लासिफिकेशन घर में हो या लाइब्रेरी में, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या हमें बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको सभी को इसका अनुभव होगा कि घर में आपका प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है, सभी चीज़ें स्कैटर है। तो आप जब स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो या यूनिवर्सिटी जाते हो और घर में सभी चीज़ें स्कैटर है, वहाँ पर एक चीज़ आपने रखी तो आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पर रखी, प्रॉपर क्लासिफिकेशन न होने की वजह से। तो फिर क्या होता है, जब आप कॉलेज जाते हो तो आपको कोई भी चीज़ जगह पर नहीं मिलती, आपको वो ढूंढना पड़ता है और उसका आपको हेडेक हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप का जो नेचर है चिड़चिड़ बन जाता है, आप क्रोध करते हो, जो चीज़ आपको समय पर और जगह पर नहीं मिली तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, ओके। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं बल्कि सभी लोगों के साथ ऐसा होते रहता है और वो होता है, ओके। तो फिर आप कभी ये नहीं सोचते कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और ये न होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये क्यों हो रहा है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन न होने की वजह से ये होता है। तो ये चीज़ें बार बार न हो, आपको परेशानी न हो, जो चीज़ आपने रखी वो वही जगह पे मिले, प्रॉपर जगह पे मिले और सही टाइम पे मिले, तो आपको आपकी घर में जो क्लासिफिकेशन है वो सुधारना होगा। जो चीज़ आप जहाँ से लेते हो वहीं पर रखनी चाहिए, अदरवाइज क्या करते, ये चीज़ यहाँ से उठाते कहाँ भी फेंक देते हैं। और बहुत सारे लोगों ने हमारे मम्मी और पापा से इसके बारे में डांट भी खाई होगी और मार भी खाया होगा, ओके। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन न होने की वजह से हमारे घर में कितना कन्फ्यूजन हो जाता है, परेशानी हो जाती है, इसका डे टू डे एक्सपीरियंस सबको है। और करंट सिचुएशन में एक्सपीरियंस हमें भी आता है, जब हम जॉब को जाते हैं तो प्रॉपर चीज़ें प्रॉपर टाइम पे या प्रॉपर प्लेस पर न मिलने की वजह से हमें जल्दी काम को जाना होता है, टाइम पर काम पर जाना होता है। यदि हम काम पर नहीं जाते तो फिर क्या, टाइम पर काम पर नहीं जाते तो फिर क्या होता है, हमारा लेट मार्क लगता है, पेमेंट कट हो जाती है, बॉस स्कॉल्ड करता है,
या एंग्री होता है, तो इससे क्या होता है फिर हम चीज़ें, ऐसे में क्या होता है फिर हमें प्रॉपर चीज़ें प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर समय पर नहीं मिलती, प्रॉपर जगह पे नहीं मिलती, तो हमारी जो पेशेंस है वो नहीं रहते और फिर हम स्कॉल्ड करते किसी को या एक दूसरे पे एंग्री होते हैं, तो उससे क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट हो जाता है घर में। ऐसा एक्सपीरियंस सभी को होगा, आपको बचपन में भी आया होगा और अभी भी डे टू डे लाइफ में जब आप सर्विस कर रहे हो तो अब भी आपको ऐसा एक्सपीरियंस आता होगा। तो ये क्यों होता है फिर? क्लासिफिकेशन न होने की वजह से। लेकिन ये सभी घरों में होता है ऐसा नहीं, कुछ घरों में ऐसी प्रॉपर सिस्टम होती है, डिसिप्लिन होती है कि वहाँ का जो क्लासिफिकेशन है कभी डिस्टर्ब नहीं होता, जो चीज़ जहाँ से ली वही आपको मिलती है, तो समय पर और वो चीज़ जब हमको लगती है तब उसको वहाँ यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ता, इसलिए सब एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है घर का। और फिर एक दूसरे के साथ कोई झगड़ा नहीं होता, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। तो क्लासिफिकेशन की वजह से घर में एक शांतता आती है और एक दूसरे के साथ हम अच्छा व्यवहार करते, अच्छा बोलते हैं। और क्लासिफिकेशन ना होने की वजह से परेशानी आती है, कन्फ्लिक्ट होते हैं, एक दूसरे पर हम चिल्लाते हैं। तो क्लासिफिकेशन हमारे ह्यूमन नेचर पर भी उसका इम्पैक्ट होता है, ये इस उदाहरण से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का अनुभव जैसे हमें घर में होता है, ठीक उसी तरह से हम आर्टिफिशियल का एक्सपीरियंस, क्लासिफिकेशन का एक्सपीरियंस लाइब्रेरी में भी लेते हैं। तो जैसे घर में हमें एक्सपीरियंस आता है क्लासिफिकेशन का, उस तरह से लाइब्रेरी में भी आ सकता है। तो लाइब्रेरी में प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको क्लासिफिकेशन की ट्रेनिंग दी होती है, क्लासिफिकेशन सिखाया होता है, स्कीम के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन होती है। तो फिर क्या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन हो, ताकि जो यूजर हमारे लाइब्रेरी में आते हैं उनको हम अच्छी तरह से सर्व कर सके। ओके, और विदाउट वेस्टिंग ऑफ time, money, energy of users, they will get the books proper time, proper place without any hesitations, okay, without any burden, without any tension। तो सहजता से प्रॉपर जगह पे प्रॉपर प्लेस पे डॉक्यूमेंट मिले ताकि उनका टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट ना हो सके। तो यही लाइब्रेरी का एक प्रमुख कार्य होता है, मेन पर्पस होता है। और इसके लिए हम सब लाइब्रेरियन जो होते हैं हमेशा एफर्ट्स करते हैं ताकि यूजर को कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, हमें लाइब्रेरी और यूजर में एक अच्छा रिलेशन बनाना होता है। जो लाइब्रेरी के बारे में किस तरह से यूजर पॉजिटिव विचार कर सकते हैं, इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। उसके लिए हमें यूजर को अच्छी तरह से सर्विस प्रोवाइड करना होता है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना होता है, ओके। और कुछ और भी सर्विसेज हम को दे सकते हैं ताकि यूजर लाइब्रेरी में आकर लाइब्रेरी का अच्छा रिलेशन मेंटेन हो सके लाइब्रेरी और यूजर के बीच। लेकिन एक दूसरी बात भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि आप बहुत सारी सर्विस अच्छी तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन यूजर भी खुश है, लेकिन जब लाइब्रेरी में यूजर आता है तो वहाँ पर प्रॉपर क्लासिफिकेशन ही नहीं है, तो फिर वे क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के बावजूद भी लाइब्रेरी के बारे में एक नेगेटिव परसेप्शन जाता है। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइब्रेरी में। सो विदाउट क्लासिफिकेशन वी
understand function of effective library or effective services, and to make the strong relation between users and library. If we want to make the library in the futures grow in the futures, then it is necessary to classify the library properly for getting the users book on the time, for getting the information users on the time, okay, without any tension. So in this way, classification is most important thing, and in different contexts it will be change the nature and features of classification. So in this way we talked about classification regarding the library क्लासिफिकेशन. तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन का जो मीनिंग है लाइब्रेरी के संदर्भ में यहाँ पर देखा, और किस तरह से लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ना होने की वजह से क्या हो सकता है, और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रॉपरली होने की वजह से कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, इसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की. So with the help of this flowchart you will be understand this topic.